1 ईयर बाइबल रीडिंग प्लान, 1 साल का बाइबल रीडिंग प्लान हम पढ़ेंगे। हिब्रियो 7 चैप्टर, जरमिया 50 चैप्टर, 51 चैप्टर हम पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय, यिर्मयाह की भविष्यवाणी 50 अध्याय, 51 अध्याय हम पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्जन में से, हिंदी में पढ़ेंगे PSI बाइबल में से। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, अपनी महान ताकत और सामर्थ्य को तूने हमारे जीवन में दिया है। तू कभी हमें त्यागेगा नहीं, कभी हमें छोड़ेगा नहीं। इस अच्छे भले काम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका जीवन हमारे अंदर मौजूद है, इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आप हमें कभी डिगने नहीं देते हैं, आप हमें कभी भी भटकने नहीं देते हैं, शत्रु के हाथों में हमें बंधुआई में जाने नहीं देते हैं। हमको छुड़ा कर तू लाता है, तेरी सच्चाई के पहरावे में हमें तू पहरावा देता है। तेरे धार्मिकता में तूने हमें अपने वस्त्र पहनाकर हमें आनंदित किया है, हमें जय उत्सव में शामिल कर दिया है। ये वचन हमारी ताकत और बल बढ़ाने के लिए, हमारा विश्वास के ऊंचे दर्जे प्राप्त करने के लिए तूने हमारे तक पहुंचाया। इसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा हमारी मदद करो, आपके अलावा ये वचन पढ़ना व्यर्थ हो जाता है। हम आपके अधीन हो जाते हैं। हमारी गलती गुनाह माफ़ कर दो। जो भी हम इस समय बातें करते हैं, हमारे मुंह का कब्जा आप लीजिए, हमारे मन का ताबा आप लीजिए, हमारे सोच हमें डिस्टर्ब करने मत दीजिए। हमारे अंदरूनी मन हमारा कहीं पर भी शैतान के चपेट में आने मत दीजिए। आपके सुरक्षा कवच का बाढ़ा दीजिए और हमें सहायता कीजिए कि हम पूरे ध्यान और मन से ये बाइबल रीडिंग को समझ के साथ पूरा करते जाएं और अपने आप को ईश्वरीय रचना में ढल कर आते हुए प्राप्त करें। नासरी यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। हम पढ़ेंगे हिब्रियोस चैप्टर 7, किंग्स जेम्स वर्जन में से पढ़ेंगे। Christ, a priest after the order of Melchizedek. First verse say, for this Melchizedek, king of Salem, priest of the Most High God, who met Abraham returning from the slaughter of the kings and blessed him, to whom also Abraham gave a 10th part of all, first being by interpretation king of righteousness, and after that also king of Salem, which is king of peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days nor end of life, but made like unto the Son of God, abideth a priest continually. Now consider how great this man was, unto whom even the patriarch Abraham gave the 10th of the spoils. And verily they that are of the sons of Levi, who receive the office of the priesthood, have a commandment to take tithes of the people according to the law, that is of their brethren, through they come out of the loins of Abraham. But he whose descent is not counted from them, they received tithes of Abraham, and blessed him that had the promises. And without all contradiction, the less is blessed of the better. And here men that die receive tithes, but there he receiveth them,
of whom it is witnessed that he liveth. And as I may so say, Levi also, who received tithes, paid tithes in Abraham, for he was yet in the loins of his father when Melchizedek met him. If therefore perfection were by the Levitical priesthood, for under it the people received the law, what further need was there that another priest should rise after the order of Melchizedek, and not be called after the order of Aaron? For the priesthood being changed, there is made of necessity a change also of the law. For he of whom these things are spoken pertaineth to another tribe, of which no man gave attendance at the altar. For it is evident that our Lord sprang out of Judah, of which tribe Moses spake nothing concerning priesthood. And it is yet far more evident, for that after the similitude of Melchizedek there ariseth another priest, who is made not after the law of a carnal commandment, but after the power of an endless life. For he testifieth, Thou art a priest forever, after the order of Melchizedek. For there is verily a disannulling of the commandment going before for the weakness and unprofitableness thereof. For the law made nothing perfect, but the bringing in of a better hope did, by the which we draw nigh unto God. And inasmuch as not without an oath he was made priest. For those priests were made without an oath, but this with an oath by him that said unto him, The Lord sware and will not repent, Thou art a priest forever after the order of Melchizedek. By so much was Jesus made a surety of a better testament, and they truly were many priests, because they were not suffered to continue by reason of death. But this man, because he continueth ever, hath an unchangeable priesthood, wherefore he is able also to save them to the uttermost that come unto God by him, seeing he ever liveth to make intercession for them. For such an high priest became us, who is holy, harmless, undefiled, separate from sinners, and made higher than the heavens, who needeth not daily, as those high priests, to offer up sacrifice, first for his own sins, and then for the people's. For this he did once, when he offered up himself. For the law maketh men high priests which have infirmity, but the word of the oath, which was since the law, maketh the Son, who is consecrated for evermore. हम हिंदी BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय, हिंदी BSI बाइबल में से हम पढ़ेंगे पहले वचन से। मल्कीसिदेक याजक, पहले वचन से। यह मल्कीसिदेक शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक सर्वदा याजक बना रहता है। जब अब्राहम राजाओं को मारकर लौटा जाता था, तो इसी ने उससे भेंट करके उसे आशीष दी। इसी को अब्राहम ने सब वस्तुओं का 10वां अंश भी दिया। यह पहले अपने नाम के अर्थ के अनुसार धर्म का राजा और फिर शालेम
अर्थात शांति का राजा है, जिसका न पिता न माता न वंशावली है, जिसके दिनों का न आदि है और न जीवन का अंत है, परंतु परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप ठहरकर वह सदा के लिए याजक बना रहता है। अब इस पर ध्यान करो कि वह कैसा महान था, जिसको कुलपति अब्राहम ने लौट के अच्छे से अच्छे माल का 10वां अंश दिया। लेवी की संतान में से जो याजक का पद पाते हैं, उन्हें आज्ञा मिली है कि लोगों अर्थात अपने भाइयों से, चाहे वे अब्राहम ही के देह से क्यों न जन्मे हो, व्यवस्था के अनुसार 10वां अंश ले। पर इसने, जो उनकी वंशावली में का भी न था, अब्राहम से 10वां अंश लिया और जिसे प्रतिज्ञाएं मिली थी उसे आशीष दी। देखो यहाँ पे 10वां अंश और फिर आशीष, समझ में आया? जो 10वां अंश लेता है, बाद में प्रॉमिसेस के अनुसार परमेश्वर हमको आशीष रिलीज करता है। अगर परमेश्वर का भाग, देखो इसने किसको दिया? अब्राहम ने मलकीसदेक को दिया। लेवी लोग कौन थे? परमेश्वर के याजक थे। याजकों के पास अगर कोई 10वां अंश देता है तो उसके बदले में परमेश्वर का प्रॉमिस है, वो प्रॉमिस आपके जीवन में काम करना शुरू होता है। समझ में आया? ओके, तो आप क्या देखते हैं? लेवी कौन है? मनुष्य जाति है। आप क्या देखते हैं? लेवी लोगों ने लिया और क्या किया? उसका अपने घर खर्च में इस्तेमाल किया। आपका क्या जाता है? उनके लिए परमिशन है परमेश्वर का। समझ में आया? आप जब एक याजक को, एक परमेश्वर के दासी को जब कुछ सौंप देते हैं, आपके अच्छे से अच्छे उत्पन्न में से आप कुछ दे देते हैं उनको, कुछ परसेंटेज, जो परमेश्वर के परसेंटेज कहा जाए तो वो 10वां परसेंटेज है, 10th परसेंटेज है। अगर आपके मर्जी से आप उसको 20% या 40% या 100% जो कुछ भी आप देते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है वो आपका नहीं रहता है, वो उनका है, जो परमेश्वर ने उनको लेने का अधिकार सौंपा हुआ है। उस पैसों से, उस देने में से आपके द्वारा उनके लिए जो दिया गया है, उसमें से वो दुनिया में कुछ भी खरीद सकते हैं, कुछ भी अपने जीवन का इस्तेमाल करेंगे या दूसरों के जीवन के लिए या परमेश्वर के भवन के कामों के लिए। आपको उसकी चिंता नहीं करना है। समझ में आया? वो आपका देना परमेश्वर को देना होता है और आशीष की चाबियां खुल जाती है। परमेश्वर के प्रॉमिसेस देने वाले के ऊपर एक्टिवेट हो जाते हैं, क्रियाशील हो जाते हैं। समझ में आया? तो आपको ध्यान रखना है, जब आप दे रहे हो तो आपके सामने ये होना चाहिए, सामने तो मेरे इंसान है, मैं उसके हाथों में सौंप रहा हूँ ये मेरा 10वां भाग, ओके, या मेरा 20 या 100% जो भी आप देना चाहते, ये मैं परमेश्वर के दास या परमेश्वर के दासी को जानते हुए मैं दे रहा हूँ कि परमेश्वर ने इनको अधिकार दिया है हमसे लेने का। बात खत्म करो, आंखें बंद करो, कान बंद करो, मुंह बंद करो, निकल जाओ वहां से। ओके, आपको जो देना है परमेश्वर की ओर से वो प्रतिज्ञाएं है, वो प्रतिज्ञाएं एक एक करके आपके अंदर, जैसा मलाकी में लिखा है कि मुझे परख कर देखो कैसे मैं ऐसे बाढ़ के समान तुम्हारे लिए आशीषों को तुम्हारे घरों में पहुंचाऊंगा, जीवनों में पहुंचाऊंगा। समझ में आया? तो आप झरोखे तोड़कर आने का जो आशीष का जो बाढ़ है, अगर वो आपको देखना है, परखना है आपको, तो आप जब बोते हैं किसी परमेश्वर के दास या दासी के जीवन में, आप उसके बाद पलट कर कभी सोचो मत उसके बारे में।
कि वो क्या कर रहे हैं। कभी चर्चा मत करो उनके बारे में कि उन्होंने आपसे लेकर क्या किया। उसके बाद आपकी परवाह नहीं है वो। आपने परमेश्वर के जन को दे दिया, बात खत्म करो। अपना 5 सेंसेस बंद कर दो उनके विषय में और चले जाओ। आपका आशीष आपके पीछे पीछे चलता हुआ आएगा। यही तो है वो मत्ती का 6 अध्याय का 33 वचन में लिखा है कि तू पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, तो बाकी सारी वस्तुएं तेरे जीवन में उंडेली जाएगी। हाँ, और वही तो लिखा है भजन संहिता के आखिरी 23 के आखिरी वचन में कि भलाई और करुणा, परमेश्वर की भलाई और करुणा सदा सर्वदा मेरा पीछा करती रहेगी। हालेलुया। क्योंकि आप ईमान रखते हो परमेश्वर के वचन को पूरा करने में, तो ये वायदे है कि आपके पीछे वही लोग आएंगे, वही चीजें आएगी, वही सब कुछ आएगा जो परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं में से निकले हुए हैं। हालेलुया। तो इसके लिए आपको देने के मामले में जरा भी कंजूसी नहीं करना है, चाहे वो परमेश्वर के दास दासियों को दे रहे हो या परमेश्वर के भवन के लिए दे रहे हो। उसके बाद आंखें बंद कर दो, अपने 5 सेंसेस को लॉकअप कर दो, मत दिखाओ कुछ भी उनके बारे में, चुप हो जाओ। आपकी आशीषें एक्टिवेटेड हो चुकी है। उसके बीच में आड़े मत आ जाओ। ओके, कुछ उल्टे सुल्टे बातें करके अपनी आशीषों को खो मत दो। आमीन। देखिए हम आगे पढ़ेंगे इसमें संदेह नहीं कि छोटा बड़े से आशीष पाता है, और वहाँ तो मरणहार मनुष्य 10वां अंश लेते हैं, पर वहाँ वही लेता है जिसकी गवाही दी जाती है कि वह जीवित है। हालेलुया। हमारा जब हम परमेश्वर के जन को अपने हिस्से में से निकाल कर दे देते हैं, तो आपको समझ में आना चाहिए ये प्रभु यीशु मसीह स्वीकारता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने ये कहा था चेलों के सामने, जब मैं भूखा था तूने मुझे रोटी खिलाई, जब मैं प्यासा था तूने मुझे पानी पिलाया, जब मैं बीमार अवस्था में बिस्तर पर था तू मुझे मिलने के लिए आया, जब मैं कैद में बंधुआई पड़ा था तू मेरी सुधि लेने के लिए आया। ये सब वो चेहरे पूछते मैं हम लोगों ने कब किया ऐसा? तो उन्होंने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जिस मनुष्य को तुमने ऐसा पाया और किया वो तुमने मेरे लिए किया, वो तुमने मुझे किया, ऐसा बोला है। ओके, तो जिन लोगों ने इन बातों के सुधि नहीं ली होगी, इन बातों के अनुसार किसी के बारे में कुछ किया नहीं होगा, तो प्रभु यीशु कहता है मैं तुमको नहीं पहचानता। वो लोग बोलते हैं अरे तेरे नाम से तो मैंने दुष्ट आत्मा निकाले, तेरे नाम से तो बड़े बड़े चमत्कार मैंने किए, और तू मुझे कह रहा है कि तू मुझे नहीं जानता है। तो यीशु कहता है मैं नहीं जानता तुमको। समझ में आया? तो भले कामों के अनुसार परमेश्वर हमको जानकारी में रखता है। हालेलुया। कुरनेलियुस को भी जानकारी में रखा क्योंकि वो दान धर्म में बहुत ज्यादा आगे था, समझा? तो उसके लिए परमेश्वर ने उसको ध्यान में रखा। वैसे ही हमको भी परमेश्वर ध्यान में रखता है। और फिर शाऊल के पौल बनने के वक्त में प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तू मुझे क्यों सता रहा है? यानी जो हमारा छल करता है, वो छल करने वाले लोगों के सामने भी हम पेश नहीं आते हैं। लोगों के सामने यीशु मसीह सामना करने चला जाता है और बोलता है तू वो इस इंसान को नहीं, तो मुझे छल कर रहा है। ओके, तो इसके लिए आप भला काम करते हैं तो आप यीशु को कर रहे हो। ओके, जब आपके ऊपर कोई बुराई कर रहा होता है तो वो यीशु के ऊपर किया जा रहा होता है। समझ में आया? जब भलाई किए तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम्हारे लिए मैं ये सब कुछ जानकारी रखता हूँ, ठीक है? और जब बुराई हो रही है तब यीशु मसीह हमारे दुश्मनों के सामने जाता है और बोलता है कि तू चुप हो जा, क्योंकि तू मुझ पर ये सब कुछ कर रहा है। तो आप लेफ्ट एंड राइट, अप एंड डाउन, बैक एंड फोर्थ, सारे चारों दिशाओं में से यीशु ही यीशु है। आमीन। कुछ भी आप अपना नहीं है। जब आप दूसरों के लिए भलाइयाँ कर रहे होते तो आप यीशु को भलाइयाँ कर रहे होते, और जब लोग आपके ऊपर बुराइयाँ कर रहे होते हैं तो लोग यीशु को बुराइयाँ कर रहे होते हैं। हालेलुया। दोनों तरफ यीशु है।
ना भला ना बुरा कोई आपको नुकसान नहीं कर सकता है। आपका जवाब यीशु है। हालेलुया। देखो आगे पढ़ेंगे हम 9 वचन से आगे। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया, क्योंकि जिस समय मलकीसेदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता की देह में था। हालेलुया। और एक बार देखो 9 वचन क्या है। तो हम यह भी कह सकते हैं कि लेवी ने भी जो 10वां अंश लेता है अब्राहम के द्वारा 10वां अंश दिया। अब्राहम के द्वारा, अब्राहम के हाथों से, ठीक है। लेवी ने भी दिया है। लेवी क्या करते हैं? सिर्फ लेते हैं, है ना। अभी आपने पढ़ा कि लेवियों को परमेश्वर ने अधिकार दिया है, फ्रीडम दिया है। तुम्हारे पास जो लोग आते हैं सेवा लेने के लिए, तुम लोग वो जो देते हैं उसको लेने का तुमको अधिकार है और उसके अनुसार तुम अपने जीविका को चला भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन और एक बात है 9 वचन में क्या है? लेवियों ने भी अपना 10वां भाग अब्राहम के द्वारा दिया। हालेलुया। तो इसका मतलब ये नहीं है लेवियों को चुप रहना है। हालेलुया। तो लेवी लोग भी अपने अंदर से अपना 10वां हिस्सा निकालकर भेंट करना है, परमेश्वर के राज्य में बोना है। लेवी लोग ये नहीं बोल सकते हैं कि हम सिर्फ लेने वाले हैं, देने वाले नहीं। ओके, बस उंडेलते जाओ हमारे जीवनों में, जितना आता है आने दो, ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेवी को भी अपनी तरफ से अपने भाग में 10वां करके निकाल देना पड़ता है, परमेश्वर के राज्य में उंडेल देना पड़ता है। हालेलुया। इसके लिए वो आशीषें एक्टिवेट नहीं होती है उनके, चाहे वो कितना भी काम करे प्रभु का, लेकिन जो ब्लेसिंग्स दिखना चाहिए मटेरियल्स में से, उन्नतियों में से, हाँ, बदलाव दिखना चाहिए संसारिक जगत के अंदर, हमारी भी एक दर्जा है जीवन जीने का, वो दिखना चाहिए। वो नहीं दिखाई देता है क्योंकि वो लेवी लोग क्या करते हैं? वो देते नहीं है। परमेश्वर के दास दासी कुछ ऐसे हैं जो अपने अंदर से 10वें भाग को निकाल कर देते नहीं है। ओके, तो फिर बाकी संसारिक बातों में जो हमारा दर्जा भी दिखना है वो चमक उनके ऊपर दिख नहीं रही है। समझ में आया? तो जब हम देते हैं तो संसारिक जीवनों के अंदर भी हमारा स्थान चमकता है। हालेलुया। देखिए यहाँ पर 10 वचन क्या है? क्योंकि जिस समय मलकीसेदेक ने उसके पिता से भेंट की, उसके पिता से भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। अगर आप समझ पाए 9 और 10 वचन तो ज़रूर कमेंट में दीजिए, क्योंकि पवित्र आत्मा के अलावा आपको ये वचन नहीं समझ में आएगा। आप गौर से पढ़कर अपने अंदर से कोशिश करो परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर इस विषय समझाए। मलकीसेदेक के सदृश दूसरा याजक, 11 वचन से आगे, यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसेदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। ओके, तो अभी डिस्प्लेस हो गया, अभी बदली कर दिया गया। देखो याजक के बारे में विशेषता क्या थी पता है? पुराने नियम में याजक के लिए जो नियम ठहराए गए हैं, जो नियम के अनुसार याजक लोगों के लिए ठहराए गए थे, लोगों के लिए ठहराए गए थे कि लोगों की कहनी बातें वो लेकर आ जाए परमेश्वर के पास। ओके, और परमेश्वर की बातें लेकर जाए लोगों तक, ऐसे वो खड़े थे याजक। ओके, और परमेश्वर की सेवा करे यानी आराधना करे, उसके लिए धूप जलाए। ओके, उसके संबंध में बने रहे। ओके,
परमेश्वर के उपस्थिति में ठहरे रहे। यह याजक का काम रहता था। तो जो याजक पद पर है तो उनको मनुष्यों के लिए कुछ नियम दिए जाते थे, खुद के लिए कुछ नियम दिए जाते थे और परमेश्वर की उपस्थिति में रुकने के लिए कुछ नियम लगाए जाते थे। तो जब याजक बदली कर दिए जाते हैं, अब याजक के नियम भी बदली हो जाते हैं, याजक के लोगों के नियम भी बदली हो जाते हैं, याजक के उपस्थित होने का, जो परमेश्वर की उपस्थिति में होने का नियम भी बदली हो जाता है। यही वचन है वो 11 वचन। यदि लेवीय याजक पद के द्वारा सिद्धि प्राप्त हो सकती, जिसके सहारे लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मलकीसदेक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। तो अब ये एक याजक था जो कोई भी वंशावली के अंदर से नहीं आया था। हारून तो वंशावली के अंदर से आया हुआ था। ओके, मूसा के बाद हारून था याजक पद पर, लेकिन मलकीसदेक के पास मनुष्य जाति के वंशावली की कोई भी रास्ते नहीं थे, कोई भी जगह से वो नहीं आया था। फिर ये याजक कैसे आया और परमेश्वर का 10वां हिस्सा अब्राहम से कैसे ग्रहण किया हारून होते हुए? तो इसका मतलब मलकीसदेक अगर याजक हुआ तो नियम भी बदली हो गए। समझ में आया? क्योंकि हारून तो एक नियम को चला रहा है ऑलरेडी, परमेश्वर ने दिया हुआ, लेकिन उसके होते हुए, उसके जीवित रहते हुए कोई दूसरा याजक नहीं बन सकता था। उस जमाने में अब्राहम के लिए मलकीसदेक याजक होकर आया, जिसका कोई नामो निशान नहीं है पृथ्वी के ऊपर कि कौन सा किसका बेटा है, किसके वंश का है, कुछ पता नहीं है। और उसने आकर वो 10वां हिस्सा लेकर चला गया और आशीषों को वायदों के अनुसार जो है वो अब्राहम के लिए खोल दिया। समझ में आया? क्योंकि 12 वचन से आगे, क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है कि वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं की, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। हालेलुया। तो वो मलकीसदेक जो याजक के रूप में याजक पद को लेके अब्राहम से 10वां हिस्सा लिया, तो उसने क्या डिक्लेयर कर दिया अपने बारे में कि मैं मनुष्य जाति का नहीं हूँ। ओके, मेरा गोत्र तुम्हारे मनुष्य जाति में से निकले हुए याजक पद के गोत्र में से नहीं हो। ओके, तो मेरे पास भी अब नियम है, मेरे पास भी एक व्यवस्था है, मेरे पास भी परमेश्वर के उपस्थिति में खड़े होने का कुछ व्यवस्था है। और वो व्यवस्था के आधार से मैं अब्राहम को 10वां भाग दे रहा है अब्राहम, उसको मैं ले रहा हूँ और प्रतिज्ञाओं को जो मेरे पास है परमेश्वर की, वो मैं अब्राहम के ऊपर रिलीज कर रहा हूँ। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं अभी? तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यानी यीशु मसीह यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है। हालेलुया। ये यहाँ पर मलकीसदेक जब अब्राहम का मुलाकात लिया, अब आप 10वां वचन पढ़ के देखिए, क्योंकि जिस समय मलकीसदेक ने उसके पिता से भेंट की, मलकीसदेक ने किसकी भेंट की थी? अब्राहम की, बराबर है। उस समय वह अपने पिता की देह में था। ओके, उसके पिता की भेंट की, उसका पिता की भेंट की, उस समय वह अपने पिता की देह में था। ये दो पिता कौन है? हाँ, यहाँ बोल रहा है कि मलकीसदेक अब्राहम के सामने आया, ठीक है। तो यहाँ पे 10 वचन बता रहा है मलकीसदेक ने उसके पिता से भेंट की। हाँ, तो वहां भेंट किससे हो रही थी? अब्राहम के साथ। तो वो अब्राहम को पिता कह रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है? उस समय वह अपने पिता के देह में था। अब ये दूसरा पिता कौन है? समझ में आ रहा है आपको? इसके लिए मैंने आपको बोला, जैसा पतरस को मांस और लहू ने नहीं, पिता ने जाहिर किया कि यीशु मसीह प्रभु है, वो परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है।
उद्धार करने वाला बेटा। ओके, वैसा ही ये वचन है जो पवित्र आत्मा के बिना आप नहीं समझेंगे। जैसे ही पवित्र आत्मा आपको समझाएगा आप उछलेंगे। जैसा एलिशाबेत के सामने मरियम गई, तब उस एलिशाबेत की मरी हुई कोख थी, वो एकदम झपट लगाकर जाग गई, उछल गई और वो कहने लगी मेरे अंदर से कुछ उमड़ गया। हालेलुया, जो जीवित हो गया कुछ। तो इस प्रकार का अनुभव आपके अंदर आएगा जब परमेश्वर ने पतरस को जाहिर किया कि ये यीशु मसीह है। तो पतरस ने वही बोला, ये तो यीशु मसीह है, तो प्रभु है, तो उद्धार करता है, परमेश्वर का इकलौता प्रिय बेटा है। तुरंत यीशु ने उसके ऊपर डिक्लेयर कर दिया, कलसिया आने वाली जो है वो तेरे ही ऊपर खड़ी हो जाएगी, इसी प्रकाशनों के ऊपर खड़ी हो जाएगी। इसी प्रकार के प्रकाशन को प्राप्त करने वाला जो रहेगा उसी को कलसिया कहा जाएगा। कम ऑन, उसके सामने नर्क के फाटक टिक नहीं पाएंगे। समझ में आया? जो प्रकाशन में से चलता है उसका सामना शैतान के कोई फाटक काम नहीं कर सकता है। समझ में आया? प्रकाशन आपकी ताकत है। समझ में आया? यही प्रकाशन को होशे में लिखा है, मेरे ज्ञान के अभाव से मेरी प्रजा नाश होती है। यानी कौन सा ज्ञान? प्रकाशन में से आने वाला ज्ञान। अब ये वचन आपने पढ़ा, क्योंकि जिस समय मल्कीसदेक ने उसके पिता से भेंट की उस समय वह अपने पिता के देह में था। अब ये क्या पिता, यहाँ भी पिता वहाँ भी पिता, और इंसान तो एक ही है। मल्कीसदेक ही कह रहा है, वो पिता से भेंट कर रहा है, और वो भी कह रहा है वही बात और एक बार कह रहा है जब वह पिता के अंदर रह रहा था। कैसे हो सकता है ये दो बातें? समझ में आया? तो ऐसी बात जो है केवल पवित्र आत्मा आपको बताएगा। जब आपको बताया, खत्म कर दो बात को, आपके बंधन टूट गए। जैसा पतरस के ऊपर जाहिर किया कुछ, और फिर यीशु ने तुरंत बोला कि अब नरक के फाटक तेरे सामने रुकेंगे नहीं और तुझ पर कलसिया बांधी जाएगी। वैसे ही यहाँ पर जैसे ही मल्कीसदेक ने वो 10वां भाग लिया, प्रतिज्ञाएं शुरू हो चुकी। ओके, जैसे ही आप ये प्रकाशन को ले लेते हैं, अपने अंदर आ जाता है, वहाँ पर कुछ तो एक डेस्टिनी आपको मिल जाती है। ओके, एक आपके लिए पोजीशन आपको ऊंचा करके दे दिया जाता है। प्रकाशन आपकी उन्नति है। हालेलुया। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर क्या है, तो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ। उस समय किधर था यीशु मसीह? शरीर में। लेकिन उस मल्कीसदेक के प्रकट होने की वजह से ये प्रकट हुआ कि उसका गोत्र कौन होने वाला है। उसका गोत्र यहूदा का गोत्र होने वाला है। हालेलुया। और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। हालेलुया। ये इतना सीक्रेट था, जैसा पतरस के सामने किसी ने चर्चा करके नहीं सिखाया था उसको यीशु मसीह कौन है बताने का। ओके, वैसा ही मूसा ने भी किसी को नहीं बताया था। इस प्रकार का भी कोई याजक पद परमेश्वर भेजने वाला है, ऐसा कोई भविष्यवाणी नहीं हुआ था, और ना ही उसके व्यवस्था में ऐसा कोई लिखा हुआ था। ओके, तो ये बिल्कुल नया और एकदम ताज़ा ये जानकारी परमेश्वर की ओर से मल्कीसदेक आने की वजह से खुल गई। हालेलुया। अब्राहम के सामने मल्कीसदेक आने की वजह से ये सीक्रेट परमेश्वर का खुल गया। समझ में आया? तो आपको समझ में आना चाहिए प्रकाशन हमारी रखवाली करता है। ठीक है, 15 वचन से आगे हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मल्कीसदेक के समान एक और याजक उत्पन्न हो जाता है। तो पहले तो लेवी समाज था याजक पद पर, अभी क्या हो गया? और एक पद आ गया, मल्कीसदेक भी याजक पद के व्यवस्था को लेकर आ गया। 16 वचन से देखिए, जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ हो।
ये था उस समय मलकीसदेक का प्रकट होने का कारण। जो आज हम जो जीवित है वो कौन है? पवित्र आत्मा के द्वारा जिलाए गए लोग हैं हम। ओके, हम शरीर के जन्मे हुए नहीं हैं, हम पवित्र आत्मा के द्वारा जन्माए गए हैं, परमेश्वर के इच्छा से जन्म पाए हुए हैं। और अब हमारे लिए जो याजक पद पर खड़ा है वो महायाजक हमारा कौन है? यीशु मसीह है। और यही यीशु मसीह कौन है? मलकीसदेक है, जो अब्राहम का सामना किया, 10वां हिस्सा लिया, तो उसके पास भी याजक पद का एक व्यवस्था था। उस व्यवस्था में आज हम मौजूद हैं। हालेलुया। जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं, शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार कौन थे? याजक पद पर लेवी लोग थे। ओके, उनकी व्यवस्था थी, उनके नियम थे, उनका परमेश्वर के सामने आना जाना एक नियम में बंधा हुआ रहता था। लेकिन और एक याजक आ गया, जीते जी, हारून के जीते जी और एक याजक आ गया। अब ये याजक के बारे में क्या? ओके, ये याजक के बारे में ये बात है कि ये याजक के पास भी अपना एक व्यवस्था है। ओके, ये याजक के होते हुए और एक व्यवस्था होते हुए हारून के याजक पद की व्यवस्था और इस याजक मलकीसदेक याजक की व्यवस्था भिन्न भिन्न है, डिफरेंट है। ओके, मलकीसदेक आत्मिक जगत में व्यवस्था चला रहा है और लेवी याजक पद जो चल रहे हारून के नीचे वो सारे शरीर के अनुसार, यानी आप उस व्यवस्था को पुराना नियम कहते हैं, उस व्यवस्था में याजक पद लेवी का था, शरीर की अवस्था में। ओके, मलकीसदेक आत्मा से जन्मे हुए लोगों के लिए है। हालेलुया। आज हम आत्मा के जन्मे हुए हैं, तो आत्मा से जन्मे हुए लोगों के लिए मलकीसदेक ने अब्राहम के समय ही जानकारी दे दिया कि ये है व्यवस्था जो आने वाले पीढ़ियों में होने वाली है। आमेन। देखिए 16 वचन क्या कहता है? जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार नियुक्त हुआ है। तो ये मलकीसदेक हारून जैसा याजक पद पर था उसकी व्यवस्था में, वैसा मलकीसदेक जो व्यवस्था में है वो किस नियम के अनुसार है? अनंत काल के जीवन के सामर्थ्य के अनुसार है, अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार यीशु मसीह को नियुक्त कर दिया गया है याजक पद पर। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको याजक क्या है जानकारी करना है तो आप हारून की व्यवस्था को पढ़ेंगे तो मनुष्य के जीवनों में मनुष्य याजक कैसा काम कर रहा था आपको मालूम पड़ेगा। अब आत्मा के जगत में जो याजक पद यीशु मसीह ने लिया है उसमें प्रभु यीशु मसीह अब हमारे साथ क्या काम कर रहा है ये आपको फिर पवित्र आत्मा समझाता है। हालेलुया। 17 वचन देखिए, क्योंकि उसके विषय में यह गवाही दी गई है तो मलकीसदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। मलकीसदेक की रीति पर क्या है? मलकीसदेक की रीति अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार उसकी रीति है। आप कौन सा नियम पालन करते हैं? अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार जो नियम है उसको हम पालन करते हैं। आप कौन सी व्यवस्था पालन करते हैं? अविनाशी जीवन के सामर्थ्य के अनुसार जो व्यवस्था है उसको हम पालन करते हैं और वो युगानुयुग रहने वाला है, कोई बदल नहीं सकता है उसको, वो व्यवस्था कभी नहीं बदलेगी। ऐसे व्यवस्था में आप प्रवेश किए हैं। हालेलुया। देखिए 18 वचन, इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। तो बिना याजक पद परमेश्वर के समीप जाना असंभव है। हाँ, इस्राएलियों को याजकों की जरूरत पड़ती थी परमेश्वर के पास से कुछ प्राप्त करने के लिए। हमको भी परमेश्वर के साथ संगति को प्राप्त करने के लिए, परमेश्वर के करीब होने के लिए याजक का जरूरत है और याजक बिना व्यवस्था के नहीं रहता है।
और वो मेल्किसदेक, वो यीशु मसीह है। इसके लिए कहा गया है पिता के पास पहुंचने का रास्ता केवल यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। हालेलुया। क्योंकि पिता बिना व्यवस्था के नहीं चलता है भाई। हाँ, अड़म तड़म नहीं चलता है, वो ऐरा गहरा नहीं चलता है, वो अपनी व्यवस्था के चैनल है बनाता है, वो उस चैनल को सेट करता है, फिक्स करता है, रचना कर देता है उसका। और उसमें से अगर कोई नहीं आता है, वो भले ही कुछ भी हो जाए उसका, परमेश्वर चिंता नहीं करता है। समझ में आया? तो आप परमेश्वर को खिलवाड़ मत समझिए। अगर आपको विश्वास जीवन मालूम पड़ गया है तो आपके चैनल यीशु मसीह उसी के व्यवस्था के अंदर से, उसके ही आज्ञा पालन में से आप परमेश्वर के अंदर एक मन होकर कुछ प्राप्त कर लेते हैं। अदरवाइज आप भूल जाओ, दया तो बहुत मिलेगी आपको। ओके, यहाँ बचा लिए जाएंगे, वहाँ बचा लिए जाएंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा, उन्नतियाँ मिलेगी, तरक्कियाँ मिलेगी, सब मिलेगा, परमेश्वर नहीं मिलेगा। बिना यीशु मसीह का परमेश्वर नहीं मिलेगा। और ये क्या कहा है? युगानुयुग के लिए है। हाँ, तो आप एक छोटे से रोटी के टुकड़े के लिए ही सिर्फ यीशु को चाहते हैं तो नाश हो जाओगे, मतलब नहीं रहेगा आपके ज़िंदगी का। ओके, अगर आप युगानुयुग के लिए यीशु को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने टुकड़ों को फेंक दो, टुकड़ों के डिमांड्स को फेंक दो। मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुझे रोटी चाहिए, मुझे ब्रेड का टुकड़ा चाहिए, ओके, मुझे एक जॉब चाहिए, मुझे एक प्रोजेक्ट चाहिए, मुझे एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, मुझे इतने ही पैसे चाहिए, मुझे इतना ही चाहिए। छोड़ो ना भाई, क्या प्रॉब्लम है आपको उसमें से? ओके, छोड़ दो उसको। ओके, और किसको पकड़ो? युगानुयुग का रास्ता जो दे सकता है। कंप्लीटली यीशु मसीह के हो जाओ। आमीन। कुछ बिगड़े तो बिगड़े, रहे तो रहे, फर्क नहीं पड़ता है, निकल जाओ। यीशु के अंदर रास्ता है, उस रास्ते में से आप प्रवेश करो जो पानी के बपतिस्मा से शुरू होता है। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेते हुए आप कबूल करते हैं कि यीशु मुर्दों में से जी उठा है, यीशु आपके पापों के लिए बलिदान किया गया है, और आपको जीवन देने के लिए यीशु मसीह का नाम लेने से और उसको अंगीकार करने से, उसकी प्रभुता आपके ऊपर लेने से, उसके अधिकार आपके ऊपर चलाने देने से आप उसके राज्य में प्रवेश कर लेते हैं। आप इस प्रकार से पापों के माफ़ी को पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में। तब आपकी शुरू हो जाती है पिता के संगति के साथ। हालेलुया। अब पिता के संगति में आप बोलो और पिता सुनेगा। हालेलुया। आप बोलो और पिता सुनेगा, आप बोलो और पिता मान लेगा आपको। हालेलुया। कोई संघर्ष नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई टूटापन नहीं, कोई डर नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई प्रकार का खतरा, कोई संकट, किसी का भी नाम लो, सब घुटना टेक देते हैं यीशु मसीह के नाम के आगे। आमीन। तो आप मरे या जिए, इस पृथ्वी के टुकड़ों के लिए यीशु का पीछा मत करो। समझ में आया? मरे या जिए, वी डोंट केयर। ओके, हम जीवित हैं तो परमेश्वर के काम करते रहेंगे, हम मर गए तो अनंत काल का जीवन का आनंद लेंगे। हालेलुया। ओके, तो ये काम हमारा नहीं है, जीना या मरना ये हमारा लक्ष्य नहीं है। ओके, कोई आपको बोलेगा ऐसा करने से मर जाओगे, वैसा करने से जीवित रहोगे, ए भाई चुप कर, मुंह बंद कर। ओके, क्योंकि हम जीना है वहाँ तक यीशु 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 करते हुए जाएंगे। ओके, अगर मरे तो अनंत काल के जीवन का आनंद लेंगे। हालेलुया। आप खुद के बारे में सोचिए, आपको क्या करना है, हमारी चिंता छोड़ दीजिए आप। हालेलुया। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि रोटी के टुकड़े के लिए आप एसाव की तरह अपने अनंत काल के अविनाशी जीवन के व्यवस्था को आप छोड़ नहीं देना है। एक रोटी के टुकड़े के लिए, एक दाल के रंग उसको अच्छा लगा और वो दाल के लिए उसने एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार छोड़ दिया। आज उसका नाम बचा नहीं है। परमेश्वर
एसाव का नाम नहीं लेता है, वो बोलता है मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर है, जबकि होना चाहिए था एसाव का परमेश्वर। एसाव ने उसे तुच्छ जाना, एक दाल के खातिर, भूख के मारे दाल को उसने ले लिया और उसके बदले में पहलौठा का हक याकूब को सौंप दिया। खत्म हो गया। अब पहलौठा का सारा अधिकार याकूब के पास आया, जबकि याकूब छोटा है एसाव से, लेकिन उसने खरीद लिया। हालेलुया। तो इस प्रकार के मूर्ख मत बनो। रोटी के एक दाने के लिए, टुकड़े के लिए, पैसे के लिए, जमीन के लिए, जायदाद के लिए झगड़ना, तोड़ना, लड़ना बंद कर दो। ओके, बंद कर दो। चुप रहो, जो हो सो हो, चुप रहो। यीशु के अंदर प्रवेश करो बपतिस्मा के द्वारा। पानी में डुबकी लगाकर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा लो, डुबकी लगाकर पानी में, और फिर निकल जाओ। यीशु का वचन जैसा कहता है वैसा वैसा जीवन जीना शुरू कर दो, और देखो वहाँ से जो आपका भविष्य निकलता है आप बाहर रह के नहीं देख सकते, उस रास्ते के अंदर होने के बाद ही आपको मालूम पड़ेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू माय डियर फ्रेंड्स। ओके, अगर आपने अभी तक ये बात को नहीं किया है, पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लिया है, समय हो चुका है अभी। ओके, नहीं तो आप बाहर रह जाओगे। और जैसा बाढ़ आया था नूह के समय, और फिर लोग डूबने लगे, और फिर दरवाज़ा तो बंद हो गया था जहाज़ का, नूह और सब कुछ तो अंदर चले गए थे जहाज़ के। अब क्या है, अब लोग चिल्ला रहे थे, अरे नूह दरवाज़ा खोल, हमको बचने दे, हमको बचने दे, हमको बचने दे। काहे का बचने दे? परमेश्वर ने उनको मरने के लिए छोड़ दिया। तो परमेश्वर ने वो सफाई किया था। ओके, क्योंकि मनुष्य जाति के अंदर का जो बीज है वो दूषित हो चुका था, वो बुराइयों को ज़्यादा करने लगा, हर प्रकार के भयानक बातों को वो, मतलब जो खतरों की बातें हैं, दुष्टता की बातें हैं, मनुष्यों के हानि की बातें हैं, परमेश्वर के राज्य को ठेस पहुंचाने की बातें हैं, वो सब कुछ वो बढ़ाने लगा था अपने चाल चलन में। ओके, तो वो नहीं रहना चाहिए बीज। इसके लिए परमेश्वर ने सब वो जो नहीं चढ़े जहाज के अंदर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया। हालेलुया। और अब ये समय है, अगर पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लेना चाहते, जब आप बाद में परमेश्वर का क्रोध इस पृथ्वी के ऊपर जब बाढ़ की तरह उस समय आया, इस समय अलग तरह से आ रहा है, वो खतरों में फिर आप पड़ोगे ना, फिर आप चिल्लाओ जितना चिल्लाना है, क्योंकि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। यीशु मसीह के दूसरे आगमन के वक्त में सारी मसीही कलीसिया उठा ली जाएगी। इस पृथ्वी के ऊपर आपको कोई नहीं मिलेगा कि आपकी पुकार को सुन सकेगा। सिर्फ वही लोग रहेंगे जो दुष्टता का बीज अब सामना करते हुए जीना पड़ेगा उनको। छूट गए लोग ही सिर्फ यहाँ पृथ्वी में रहेंगे, जिनके ऊपर सिर्फ दुष्टता ही भारी रहेगी। परमेश्वर उनको कुछ बोलने वाला नहीं है। हालेलुया। समझ में आ रहा है आपको? तो उस रास्ते को आप महत्व दीजिए जहाँ दुष्टता भारी रहने वाली है, उसमें से आप बचकर निकलना है। तो पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा ले लो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में, और यीशु की व्यवस्था में शुरुआत हो जाओ। ओके, बचा लिए जाओगे आप, नहीं तो वो भारी समय है जिसके अंदर आप रुक नहीं पाओगे। ओके, और उसके बाद भी आप रुक नहीं पाओगे, क्योंकि उस वक्त तो आप मरोगे, लेकिन मरने के बाद भी क्लेश है आप लोगों के लिए जो पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा नहीं लिए हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में। समझ में आया? तो आप और उसके यीशु के व्यवस्था में भी चलना है आपको। ओके, तो ख़त्म करो बात को। एक छोटे से फ़ायदे के लिए यीशु 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 करते मत बैठो। जो असली में यीशु देना चाहता है, अविनाशी जीवन की सामर्थ्य के अनुसार के व्यवस्था में आपको लेना चाहता है, वो पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा से शुरू होता है। चले आइए उसमें से, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लीजिए और चले जाइए उसमें से आगे यीशु 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 करते हुए। ओके, उसमें आपके रोटी के टुकड़े भी लीजिए, आपकी ज़मीन जायदाद भी मांग लीजिए, उससे पैसे भी मांग लीजिए। इस पृथ्वी के ऊपर आपको जो लेन देन करना है सब कुछ उसके ही प्रार्थना करते करते आप प्राप्त करते जाइए, आप सुरक्षित रहोगे। आमीन। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, और 23 वचन से आगे,
वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु, एक मिनट, इस प्रकार यीशु युगानुयुग याजक है। 22 वचन से, इस प्रकार यीशु एक उत्तम वाचा का जामिन ठहरा। 23 वचन से आगे, वे तो बहुत बड़ी संख्या में याजक बनते आए। इसका कारण यह था कि मृत्यु उन्हें रहने नहीं देती थी, पर यह युगानुयुग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। ओके, देखिए क्या है, वे तो बहुत बड़ी, व्यवस्था बदलती नहीं थी, लेकिन हारून तो मरता है ना, मूसा तो मरता है ना। ओके, फिर आगे जाकर दूसरे याजक पद पर जो भी आ रहे थे, दूसरे लोग जो उस हारून की जगह में आ रहे थे, वो भी तो मरते ही जा रहे थे ना। तो ये मरने के कारण बहुत बड़ी संख्या में याजक लोग होकर चले गए हैं। ओके, पर यीशु मसीह जब याजक पद पर आ चुका है, वह युगानुयुग ठहरा रहता है, क्योंकि वह अटल याजक पद पर आया हुआ है, उसके अंदर मृत्यु नहीं है। हालेलुया। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। आपको कोई और सहारा का जरूरत नहीं है। परमेश्वर का पुत्र आपके लिए फिर सहारा बन जाता है, हर चीज, हर बात में, हर काम के लिए, हर अवस्थाओं के लिए। लेकिन पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने के बाद में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में पानी में डुबकी लगाकर बपतिस्मा लेने के बाद में शुरू होता है ऐसा। समझ में आया? 26 वचन से आगे, अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग, और हालेलुया, हाँ, पापियों से अलग। हाँ, कितना प्यारा शब्द है, पापियों से अलग। वाव। और स्वर्ग से भी ऊंचा। कौन सी ताकत दिखाता है शैतान? स्वर्ग की, उसके ऊपर ऊंचा और कोई है हमारे पास। हालेलुया। उन महायाजक, और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ हो, उन महायाजकों के समान उसे आवश्यक नहीं कि प्रतिदिन पहले अपने पापों और फिर लोगों के पापों के लिए बलिदान चढ़ाए, क्योंकि उसने अपने आप को बलिदान चढ़ाकर उसे एक ही बार में पूरा कर दिया। क्योंकि व्यवस्था तो निर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है। व्यवस्था यानी पुराना नियम, जो पापी मनुष्य था, उन्हीं में से वो निकाल कर व्यवस्था में लेकर आते थे कि याजक पद में हो जाए, वो लेवियों में से, है ना। परंतु उस शपथ का वचन जो व्यवस्था के बाद खाई गई, उस पुत्र को नियुक्त करता है, तो जो युगानुयुग के लिए सिद्ध किया गया है। ओके, जो लेवी समाज में से आया हुआ रहता था, वो सिद्धि नहीं प्राप्त करता था, लेकिन फिर भी उसके कमजोर अवस्था के लिए उसको खुद के लिए भी एक मनुष्य जाति के रूप में बलिदान चढ़ाना पड़ता था। परमेश्वर के सामने कुछ ना कुछ व्यवस्था करके अपने आप के लिए अपराधों के माफी ले लेनी पड़ती थी परमेश्वर से, और फिर बाद में वो लोगों के लिए बलिदान चढ़ाया करता था। यीशु मसीह ने अपने खुद को ही बलिदान दे दिया। हालेलुया। और फिर वह याजक पद के ऊपर भी खड़ा हो गया, और अविनाशी जीवन के नियमों के अनुसार, व्यवस्था के अनुसार, जीवन के सामर्थ्य के अनुसार उसने हमको भी अपने अंदर ले लिया। हालेलुया। अब युगानुयुग हम मसीह के अंदर है, तो हम कौन जाति है? हम पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग है, स्वर्ग से भी ऊंचे है। हालेलुया। क्योंकि हम किसके अंदर है? अब यीशु मसीह के अंदर हो चुके हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के अंदर हो चुके हैं, तो यीशु मसीह कहाँ है? यीशु मसीह पवित्र है, निष्कपट है, निर्मल है, पापियों से अलग है, स्वर्ग से ऊंचा है। हालेलुया। आमीन। तो इस प्रकार से हमारी पहचान अब यीशु के अंदर है। हमको कोई अपवित्र नहीं कर सकता है, कोई हमें कपटी नहीं बना सकता है, कोई हमें अशुद्ध नहीं कर सकता है, कोई हमें पापों में नहीं ले सकता है,
कोई हमें स्वर्ग की ताकत से डरा नहीं सकता है। हालेलुया, क्योंकि हम यीशु के अंदर है और वो हमारा सब कुछ पिता के सामने विनतियों में पेश करवाता है। करते हैं ना हम प्रार्थना? कौन करता है प्रार्थना हमारे अंदर से? उसका आत्मा, परमेश्वर का आत्मा जो हमारे अंदर है, वो हमारे अंदर से विनतियों को करता है। हाँ, परमेश्वर ये कर, पिता ये कर, हमारी ये सुन। कौन करता है ये प्रार्थना? पवित्र आत्मा। हालेलुया। और वो प्रार्थना कैसे जाती है? क्योंकि महायाजक वो प्रार्थना को परमेश्वर के सामने पेश कर रहा होता है और परमेश्वर इनकार करे, इम्पॉसिबल है। इसके लिए कहा गया है, याव के साथ आ जाओ, बल के साथ, हिम्मत के साथ आ जाओ, धैर्य के साथ आ जाओ परमेश्वर के दया के आसन के पास। निश्चित है तुम्हारे लिए दया रिलीज हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। कोई बात ऐसी नहीं जो परमेश्वर अनसुना करेगा अगर आप इस प्रकार से प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास लेकर जाते हैं। इस ज्ञान को आपके अंदर रखकर परमेश्वर के पास आपकी प्रार्थना पहुंचती है। अगर ये जानकारी आपके अंदर है, खत्म करो बात को। कौन है ऐसा जो आपकी प्रार्थना को रोक पाए? हालेलुया, कोई नहीं। आमीन, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु हमारी सहायता करे, हर बात में, हर समय में हमारी सहायता करे, हमारे जीवन को बदलता हुआ आगे लेकर जाए और हमारा जीवन परमेश्वर चाहता है उस अवस्था में, युगानुयुग की अवस्था में ढल कर लेकर आए, हमें ईश्वरीय रचना में लेकर आए, डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आए, हमें फिट एंड फिक्स करे इन वचनों में, सुधार करे हमारे जीवनों को इन वचनों के अनुसार, और मसीह के अंदर से होकर जाते समय का जो जो हमारे जीवनों पर होना चाहिए वो सारा प्रभाव हम पर उंडेला जाए, नासरी यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन, आमीन।